ماں، یہ لفظ سنتے ہی دل میں احترام پیدا ہو جاتا ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے۔ ماں چیز ہی ایسی ہوتی ہے، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ماں کو تکلیف پہنچا سکے، لیکن ماں میں عورت کا روپ چھپا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تو کسی سے بھی ٹکر لے سکتی ہے، لیکن اگر اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ کبھی نہیں بھلائی جاتی، بے شک پھر اس کو اپنی سگی بیٹی کی ہی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔ میری کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہی ہے۔ میں جب سے ہوش سنبھالی تھی، ماں اور بابا کو لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ میرا باپ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میری ماں مجھ سے پتہ نہیں کیوں خفا رہتی تھی۔ اصل میں بات یہ تھی کہ میری ماں ایک بہت ہی حسین لڑکی تھی اور میرا باپ بہت امیر تھا۔ میرے بابا کو میری ماں پسند آ گئی اور رشتہ لے کر میری ماں کے گھر پہنچ گئے۔ حالانکہ میرا باپ میری ماں سے 20 سال بڑا تھا اور میری ماں شادی کے لیے نہ مانی، اور پھر میرے باپ نے بہت سارا پیسہ دیا میرے نانا کو، اور نانا نے زبردستی امی کی شادی ابا سے کروا دی۔ میرے بابا میری ماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میری ماں یہی کہتی تھی کہ تم مجھے خرید کر لائے تھے، تم نے مجھے بازارو عورت بنا دیا، اب بازاری عورت سمجھ کر ہی مجھ سے جسمانی ہوس پوری کرو۔ میرا ابا کہتا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں نہیں تھی مانتی۔ شاید میری ماں نے جو اس کے ساتھ ہوا اس کا بدلہ مجھ سے لینا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے بابا پریشان رہنے لگے اور کاروبار برباد ہونے لگا، اور ایک وقت آیا کہ ہم غریب ہو گئے، ابا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہم ماں بیٹی گھر میں اکیلے رہ گئے، اور میں نے گھر میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ اسی سے گھر چل رہا تھا کہ ہم 2 لوگوں کا اتنا خرچہ نہیں تھا۔ اس دن امی کہیں گئی تھیں، واپس آئیں تو بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، خیر تو ہے؟ تو کہنے لگی نہیں تو وہ آدمی۔ میں نے کہا کون سا آدمی، کس کی بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے تو ایسی شکل بنا رہی تھیں جیسے کسی نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہو۔ سردی میں بھی ان کو پسینہ آ رہا تھا اور وہ کافی ڈری ہوئی تھیں، پر جب میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، تو کہنے لگی کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ کھانا لگاؤ میرے لیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ امی باقاعدہ گھبرائی ہوئی تھی، مجھ سے عجیب باتیں کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کس آدمی کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور بات کرتے کرتے رک گئی۔ لیکن 2 ہفتے بعد امی نے مجھے کہا کہ دیکھو ہم گھر میں اکیلی رہتی ہیں، اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میں تمہاری شادی کروانے لگی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ساری زندگی آپ کو بابا کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، شادی کر کے زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میری امی نے کہا کہ شادی تو کرنی ہوتی ہے نا، اور ویسے بھی اس گھر کو ایک مرد کی ضرورت ہے، اب اس عمر میں تو شادی نہیں کر سکتی ہوں نا۔ میں نے کہا کہ ہاں بالکل، اب کہاں شادی کریں گی، نہیں تو دنیا والے کیا کہیں گے کہ ہاں یہی تو بات ہے، تمہاری شادی ہو گئی تو داماد کو کہیں گے وہ گھر میں گھر داماد بن کے رہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کوئی کہاں سے ملے گا، تو کہنے لگی کہ ایسا کوئی ڈھونڈ لیا ہے، بس تم ہاں کرو تو میں تمہاری شادی کروا دیتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ میرے دل نے کہا کہ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے، پر امی نے زبردستی کہا کہ میں تیری شادی کروں گی، تیرے سے میں نے ایک دفعہ پوچھنا تھا، میں نے پوچھ لیا، لیکن تو میرے سر پہ چڑھ گئی ہے، اب تیری ہاں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں پر ہم اکیلی رہتی ہیں، کل کو کسی کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اکیلی ہیں، کل کو کسی نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو۔ میں حیران رہ گئی کہ لگتا ہے سارے فیصلے وہ پہلے ہی خود سے کر بیٹھی تھی، بس ایسے ہی مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ جب میں نے انکار کیا تو ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تیری مرضی ہو نہ ہو میں تو تیری شادی کروا دوں گی۔ کہتے ہیں جس تیر سے ایک دفعہ انسان مرا ہو تو اس سے دوسروں کو مرنے نہیں دیتا، لیکن جب میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ امی کی شادی بھی اسی طرح ہوئی تھی، وہ ساری زندگی ابو سے لڑتی رہی تھی، ایک دن بھی انہوں نے سکون سے نہیں گزارا۔ پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھیں کہ میری شادی بھی مجھ سے 20 سال بڑے انسان سے کروا دی؟ ابھی نکاح نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کریں، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، مجھے بچا لیں، نہیں تو میری زندگی بھی آپ کی طرح ہی گزرے گی۔ تو میری ماں نے کہیں کھو کر کہا
کہ तेरी ज़िंदगी मेरी तरह नहीं गुजरेगी और ये शख्स हमारे साथ रहने को तैयार है, इसकी नौकरी भी बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। मैंने देखा था जब मेरी माँ तैयार होती थी, मेरे पापा कहते थे कि क्या ज़रूरत है तैयार होने की, मुझे तुम्हारा ये लेपा पोती वाला मुंह अच्छा नहीं लगता है। वो उनको कभी भी तेज़ रंग के कपड़े नहीं पहनने देते थे, कहीं लेकर नहीं जाते थे, हाथों पे मेहंदी नहीं लगाने देते थे, तैयार नहीं होने देते थे। उनके सारे छोटे छोटे अरमान जो एक औरत के दिल में होते हैं वो कभी भी उनको बाबा ने नहीं दिए। और फिर अम्मी ने मेरी शादी भी इसी मर्द से करवा दी, जबकि मैं तो इनकी इकलौती बेटी थी। लेकिन मैंने कहा कि वो एक अच्छा इंसान लगता है। ऐसा नहीं होता कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। और मेरी ज़िंदगी कुछ अजीब सी थी। मैंने शादी की पहली रात अपने शौहर को कह दिया कि मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकती, इसीलिए तब तक तुम मेरे करीब नहीं आओगे। मुझे लगा था कि वो इस बात पर गुस्सा करेगा, कोई ना कोई बात करेगा या जाकर मेरी माँ को बता देगा, क्योंकि वो हमारे घर में ही तो रह रहा था। अपना सामान लेकर आ गया था, लेकिन उसने ऐसी कोई बात भी नहीं की और जाकर सोफे पर सो गया। सुबह उठी तो वो काम पर जा चुका था। अम्मी ने मुझसे कोई बात नहीं की और मैं अपने ही घर में रहने लगी। अपनी दोस्त को ये सब कुछ बताया तो उसने कहा, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें रुखसत भी नहीं होना पड़ा, तो अपने ही घर में रहेगी अपनी अम्मी के साथ, और जैसा तुम कह रही हो ऐसे तो वो अच्छा इंसान ही लग रहा है, नहीं तो पहली रात वो तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करता। बंदा ख़ानदानी है और अगर उम्र में ज़्यादा है तो क्या हुआ, मर्द की उम्र थोड़ी देखी जाती है, मर्द तो हमेशा जवान रहता है। थोड़ी उम्र ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता पागल। ये जो बड़ी उम्र के मर्द हैं ना, जब इनको छोटी उम्र की औरत मिल जाती है तो वो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तुम खूबसूरत हो तो उसका दिल जीत लोगी, तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, तुम्हारे लिए हर चीज़ ला कर देगा, चीज़ें लेकर आया करेगा। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम इससे दूर भागो या नज़दीक भाग जाओ, वही तुम्हारा शौहर है और वही तुम्हारी किस्मत है। इसीलिए इस चीज़ को कबूल कर लो। मेरी दोस्त की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन मैं कबूल करने को तैयार नहीं थी। वो रात को देर से आता था, इसलिए मैं पहले ही सो जाती थी। एक दिन बीच रात मेरी आंख खुली तो देखा तो वो सोफे पर सो रहा था। उसने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। मैंने कहा था कि आज की रात मुझे हाथ नहीं लगाना, लेकिन अब मैं भी उसके करीब जाना चाह रही थी और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाता, मुझसे कोई बात भी नहीं करता। मैंने फिर से अपनी दोस्त को ये सब कुछ बताया तो उसने कहा कि लगता है उसके जज्बात भी मरे हुए हैं। अच्छी बात है, तुम्हें क्या मसला है, तुम एक काम करो, उसे कोई चीज़ मांग के देखो, अगर तुम्हारे लिए ले आया तो उससे तेरी फिक्र है। मैंने उसे कहा कि मुझे एक नीले रंग का सूट चाहिए, क्योंकि मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। प्लीज़ मेरे लिए एक नीले रंग का सूट ले आए। और वो ले आया। उसने मुझे कुछ पैसे भी खर्च के लिए दिए। मैंने अपनी दोस्त को बताया तो उसने कहा कि अच्छी भली हो तुम, आजकल लोगों के साथ इतना बुरा होता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे शौहर को मैंने एक दफ़ा ही कहा था कि मेरे करीब ना आना, लेकिन वो इस कदर मेरा लिहाज कर रहे थे कि मुझे ये बात अच्छी लगने लगी। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को भी समझाना होगा, अब वो मेरा शौहर है। एक दिन मैंने कहा कि मुझे अपने साथ बाज़ार ले जाएं, तो अम्मी ने भी मुझे हैरान होकर देखा। वो कह रही थी कि तुमने क्या लेना है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन मैं उनके साथ बाहर जाना चाहती थी। वैसे तो मुझे अम्मा कहीं जाने नहीं देती थी, अब शौहर के साथ तो जा सकती थी, कम से कम सैर तो करवा सकता था। हम लड़कियां तो यही सोचकर खुश होती हैं कि शादी हो जाएगी तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, अच्छे कपड़े मिलेंगे, शौहर सैर करवाने के लिए लेके जाएगा। अम्मी ने कहा कि क्या लेना है तुमने। मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे जूता लेना है, क्योंकि जूता लेने के लिए खुद ही जाना पड़ता है। पता नहीं क्यों वो इतनी बातें सोच रहा था। मैं उसे अपने साथ ले गई और वो जूते की दुकान के सामने जाके रुका तो मैंने कहा कि मैंने झूठ बोला था, मुझे जूता नहीं लेना है, मुझे बहुत प्यास लगी है, चलें कहीं जाकर माल्टे का जूस पीते हैं। उसने कहा कि नहीं, मुझे काम है, मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मैं घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कि क्या हो गया आपको, शादी के बाद पहली दफ़ा हम लोग कहीं बाहर आए हैं, क्या आप थोड़ी देर मुझे सैर नहीं करवा सकते। उसने कहा कि मुझे काम है। मैंने कहा कि मैं आपके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, और इस बात को सुनकर खामोश हो गया। उसके बाद वो मुझे जूस पिलाने ले गए, लेकिन वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे।
मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। अब तो मुझे लगने लगा था कि मैं उससे दूर नहीं भाग रही थी, बल्कि वो मुझसे दूर भाग रहा था। कहीं उसने गुस्सा तो नहीं कर लिया था इस बात का कि मैंने पहली रात उसे अपने करीब नहीं आने दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गैर आदमी के साथ बाहर गई हूँ। अम्मी ये ना समझे कि हम लोग उनको बताए बगैर कहीं बाहर निकल गए, इसलिए मैंने 2-4 चीज़ें भी ले ली। लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि मेरा शौहर लगता है इस बात का गुस्सा कर गया था। ये बात अपनी दोस्त को बताई और उसने मुझे एक मशवरा दिया। एक दिन मेरा शौहर घर में मौजूद था और मेरी माँ सामान लेने गई थी। मैंने कहा कि मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती करवाई गई थी, इसीलिए मैंने शादी की रात तक वो बात की थी, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन वो इस बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे अम्मी के आने का इंतज़ार कर रहा हो। मैंने कहा कि क्या बार बार इधर उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देखें। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मैं तो अच्छी भली खूबसूरत हूँ, आपसे उम्र में भी छोटी हूँ। उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ना चाहा, साथ ही अम्मी घर में आई। मैंने अपने शौहर का हाथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो मेरा शौहर था। मैं उसका हाथ पकड़ सकती थी, लेकिन उसने खुद ही मेरा हाथ झटक दिया और हाथ पीछे बांध लिए। पर वो खुद ही मेरा हाथ झटक कर उठ गया और अचानक जेब से फ़ोन निकाल के बोला कि मुझे कुछ ज़रूरी कॉल करनी थी, मैं भी आता हूँ। वो घर से बाहर निकल गया था। अम्मी ने मुझे ऐसे देखा जैसे हमें खा जाएंगी। मैंने कुछ नहीं बोला। अम्मी ने कहा कि ये क्या हरकत है, घर में दिन दहाड़े तुम क्या कर रही थी? मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, आप भी तो अब्बू के साथ बैठ के खाना खाती थी, कभी वो आपका हाथ पकड़ लेते थे। वो मेरा शौहर था, तुम मेरी औलाद हो, लेकिन मैं तुम्हारे शौहर के साथ रहती हूँ। तुम मेरे सामने इस तरह की हरकतें नहीं करोगी। वो बेचारा शर्मिंदा होकर चला गया। मैंने कहा कि ये बात मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अम्मी ने कहा तुम्हें समझ नहीं आएगी। मेरी दोस्त की बात ठीक थी, मुझे वाकई एक शौहर की ज़रूरत थी जो मेरे खर्चे उठाए, मेरा ख्याल रखे, मुझे ये बताए कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेरी दोस्त की शादी हो चुकी थी, इसीलिए उसने मुझे ये सारी बातें बता दी थी कि एक इंसान को जब उसका जोड़ मिल जाता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को जोड़ों में पैदा किया, तो फिर उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत बदल जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। साथ देने वाला कोई होता है, हम सफ़र, जिससे अपने दिल की बात कर सकते हैं, जिसके सामने आपको किसी बात की भी फिक्र नहीं होती है। वो आपका ख्याल करता है। अगर आपसे मोहब्बत करता है तो सारी दुनिया आपके बारे में बुरा सोचेगी, लेकिन वो आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा। और मर्द औरतों के मुहाफिज होते हैं। जब औरतों का ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब शौहर छोटी छोटी बातों पर ये महसूस करवाते हैं कि वो हमारे पीछे खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं भी अब ये सब बातें महसूस करना चाहती थी, लेकिन मेरा शौहर मुझसे दूर भाग रहा था और मुझे पता चल गया था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शादी की पहली रात जो बात मैंने की थी, उस बात का कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं घबराई हुई थी। ज़रूर बात कुछ और थी। और वो मेरे सो जाने के बाद घर आता तो सुबह उठने से पहले चला जाया करता था। एक दिन तो मैं उसके इंतज़ार में जागती रही, लेकिन वो जैसे आया हाथ धोकर बिस्तर पर जाकर सो गया। मैंने कहा आपने खाना नहीं खाना, तो कहने लगा कि मैं खाना खा कर आया हूँ, तुम भी सो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं परेशान होने लगी। मैंने कहा कि वो दूर भाग रहा है मुझसे, तो मैं उसके पीछे नहीं भाग सकती। वैसे भी मेरे सारे मोहल्ले वाले, मेरी दोस्त, रिश्तेदार सब कुछ जानते थे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी इतनी बड़ी उम्र के मर्द के साथ कर दी। चलो फ़र्क होता है 5 साल का, 8 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 10 साल का, लेकिन ये तो तुमसे 20-22 साल बड़ा है। ये तो तुम्हारी अम्मी ने अपनी उम्र के आदमी के साथ तुम्हारी शादी करवा दी है। उसे अच्छा तो वो खुद ही इससे शादी कर लेती। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रात को सो गई और मैंने सोचा कि मैं अपने शौहर से फाइनल बात करूंगी कि वो क्या चाहता है, उसे किस बात का गुस्सा है। उसने अपने दिल में कोई बात रख ली है जो मुझसे दूर भाग रहा है। अगर उसने मेरे साथ रहना है तो फिर तरीके से रहना होगा, नहीं तो मुझे बता दे ताकि मैं भी उसके पीछे भागना छोड़ दूं, क्योंकि इस तरह मेरी इज्जत नफ्स को भी तो ठेस पहुंच रही थी ना। लेकिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर सोफे पर था ही नहीं।
मैं उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी, लेकिन बीच रात मेरी आँख खुल गई क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। मैंने पानी पीना था, वो कमरे में नहीं था। मुझे लगा कि शायद बाथरूम में होगा, लेकिन बाथरूम में भी नहीं था। मैं पानी पीने के लिए किचन में चली गई और पानी पीते पीते मेरे कानों ने कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें सुनी। मैं हैरान रह गई। उन आवाज़ों का पीछा किया तो देखा ये आवाज़ें मेरी अम्मी के कमरे से आ रही थी। कमरे की लाइट भी ऑन थी। छोटा सा घर था, 2 ही कमरे थे। मेरा शौहर घर में नहीं था और घर के अंदर से ताला लगा के हम लोग सोते थे। उसका मतलब कि मेरा शौहर भी उसी कमरे में था। हो सकता है कि मेरे शौहर को अम्मी से कोई बात करनी हो, वो उनके कमरे में जा सकता था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद था और अंदर से लॉक। तो मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला और अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अंदर जा सकती, क्योंकि मैं बात समझ चुकी थी। मैं कोई ऐसा मंजर नहीं देखना चाहती थी जिसको मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं पाती। सुबह हुई तो मैंने अपनी अम्मी और शौहर को सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन उसके बाद मेरे शौहर ने कहा कि उसको सब कुछ बता दो। वैसे भी मैं इससे बहुत तंग आ गया हूँ, मेरे पीछे पीछे आती है। ये मेरा शौहर किस किस्म के अंदाज में बातें कर रहा था। वो घर से चला गया। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि दरअसल मैं शादी से पहले इससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरे बाप ने मेरी शादी तुम्हारे बाप से करवा दी, जिससे मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। तुम्हारे पापा को भी पता था, इसीलिए उन्होंने मुझे कभी इज्जत नहीं दी। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो ये एक दिन मुझे बाज़ार में मिला। मैं बहुत घबरा गई थी इसको देखकर, लेकिन इसने कहा कि इसकी बीवी भी इसको छोड़कर जा चुकी है और अब वो मुझसे शादी करना चाहता था। लेकिन मुझ पर मुआशरे का बहुत बड़ा दबाव था, क्योंकि मैं एक जवान बेटी की माँ थी और तुमसे भी ये बात कैसे कह सकती थी कि मुझे अपने पुराने इश्क से शादी करनी है। मैं ये काम नहीं कर सकती थी, लेकिन छुप कर इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए मैंने इसकी शादी तुमसे करवा दी, जबकि रिश्ता खुद रखा ताकि ये इस घर में रहे और हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकें। मेरी माँ मुझे इतनी आसानी से ये सब कुछ बता रही थी। मैंने कहा कि आपके लिए सरेआम निकाह करना मुश्किल था, लेकिन छुपकर ज़ना करना आसान था, और आपने मुझे इस्तेमाल किया, अपनी बेटी को। मैं इसको अपना शौहर समझती थी, तभी ये मुझसे दूर भागता था और मैं समझती थी कि ये इसकी शराफत है। आप किस किस्म की औरत हैं? आपको इससे कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि अगर मोहब्बत होती तो उससे निकाह करती। उसको भी आपने गुनाह में डाला और ख़ुद भी गुनाह कर रही हैं और मुझे इस्तेमाल किया। मैं सबको ये बात बता दूंगी, सारे रिश्तेदारों को और सारे मोहल्ले वालों को भी। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ। क्या मैं आपकी बेटी हूँ या मुझे आपने कहीं से उठाया था? मेरी माँ खामोश थी, लेकिन शर्मिंदा नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया, मैंने सारी ज़िंदगी बर्बाद की तुम्हारे बाप के पीछे। उसने मुझे ये छोटा सा घर दिया और क्या दिया, और मुझे छोड़ के वो इस दुनिया से चला गया। अगर गलती से भी अपने बारे में कुछ सोच लें, ज़माना हमें खुद गर्ज कहता है। मैंने अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए शादी की, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुका था। मुझे हक था कि जिससे चाहे शादी करती, लेकिन अब मेरी उम्र हो चुकी थी तो मैं ये नहीं कर सकती थी। इस मुआशरे ने मुझे जलील करवाया है और मैंने इस मुआशरे से बदला लिया। अच्छा किया मैंने, और तुम्हें भी चुप रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तुमको मेरा साथ देना होगा। मेरी अम्मी ने मुझे थप्पड़ लगाया और मैं हैरान रह गई कि एक तरफ तो वो ये गलत काम कर रही हैं और दूसरी तरफ मुझ पर हाथ उठा रही हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आजकल लोग बड़े बेरहम थे। अगर मैं मोहल्ले में सबको ये बात बता देती तो वो सब लोग मिलकर मेरी माँ को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। इसी कश्मकश में थी और दिन इसी तरह गुजर रहे थे। अब तो वो मेरी अम्मी के कमरे में ही रहता था, जबकि मैं उसके निकाह में थी और सरेआम घर में इतना कुछ हो रहा था। लेकिन 2 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ही ख़त्म हो गया। जब हमें पता चला कि उस शख्स ने झूठ बोला था, उसकी पहली बीवी जिंदा थी और वो उसको अपने साथ लेकर बाहर के मुल्क जा रही थी। ये शख्स भी जा रहा था, बल्कि उसने अम्मी को इस्तेमाल किया था और मेरे नाम तलाक भेज दी थी। मेरी अम्मी को उनके किए की सज़ा मिल गई। वो शख्स धोखेबाज था। अब अम्मी बिल्कुल चुप रहती थी, रातों को उठकर रोती थी, कहती थी कि मैंने तुम्हें भी जलील करवाया, तुम पर तलाक याफ्ता होने का धब्बा लगा लिया।
फिर भी वो शख्स मुझे छोड़कर चला गया है। मेरे माँ बाप का फैसला ठीक था, फिर भी मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे बाप को प्यार नहीं किया, हमेशा लड़ती ही रही। मेरी अम्मी बहुत दुखी रहने लगी और बिलाखिर बीमार हो गई। अब मैं इनका ख्याल रखती हूँ और वो बहुत शर्मिंदा हैं और अपने आप को कसूरवार समझती हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो होना था सो हो गया। आपको क्या पता था कि वो शख्स आपको धोखा देगा, लेकिन कहती हैं कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। दिन इसी तरह गुजर रहे हैं और मैं अपनी अम्मी की खिदमत कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। और उस शख्स के लिए तो मेरे दिल से बद्दुआएं ही निकलती हैं जो एक ही वक्त में मेरी अम्मी की ज़िंदगी बर्बाद करके चला गया और मेरी भी। मेरी माँ की गलती थी और शायद मेरी माँ को उसकी गलती की सज़ा मिल रही है कि आज वो इस बिस्तर पर पड़ गई हैं और अपनी मर्ज़ी से हिल भी नहीं सकती हैं। लेकिन फिर भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो मेरी माँ है।